अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ਅੱਜ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗਰ ਬਖਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁਐਬ ਅਮਾਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਕੌਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਈਜਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ को ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ को ਤਕਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ को ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਸਤਜੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ایجادات کے نال ہی چیزاں کو مزید جڑا نا انسان کھوج تلاش کرتے رہ گئے، انسان تجسس رہ گئے، تجسس تو اگو ودے ودے علم دی وسعت ودی گئی ہے، کیونکہ علم پہلے بھی موجود ہے لیکن انسان کو تلاش کرتے رہ گئے، تو نال نویں تو نویں تحقیقاں سامنے آتے رہ گئے، نویں تو نویں شعبے وجود وچ آ گئے، تو ایویں شعبیاں دے ذریعے نال جویں جویں شعبے وجود وچ آئے ایویں ہی سارے جو ہے بہت سارے واسطے فیلڈ تے شعبے تے کیریئر جڑا نا عوام دے واسطے مواقع آ گئے کہ جن دے نال سارے نوجوان جڑا نا اتوں فیض یاب تھی سکتے ہیں، اتاں اپنی زندگی دے بہترین طریقے نال گزر بسر کر سکتے ہیں، انہاں شعبے دے ذریعے نال اپنے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے حال وچ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تے انہاں شعبے دے اوتے یہ پروگرام ہے پیا، این پروگرام وچ ہم تمام شعبے دے اوتے ڈسکس کرے نے جڑے سارے این وقت دی ضرورت بھی ہیں، مستقبل دی بھی ضرورت ہے، تے آنے والے وقت وچ بھی انہاں دا جڑا کیا اسکوپ ہے این دے اوتے پراپر سارے اوتے این پروگرام واسطے گل تھیندی ہے۔ تے یہ پروگرام ماشاءاللہ نوجواناں واسطے جڑا نا پی ٹی وی نیشنل دا ایک تحفہ ہے کہ اساں نوجوانوں دے بارے چاہنے ہیں کہ سارے جو نوجوان ہیں جنہیں ٹیلنٹ ہے، جنہیں بڑی اسکلز ہیں تے بڑے ماہر نوجوان ہیں، لیکن اگر انہوں کو کسی نہ کسی کوئی کمی بیشی یا کسی نہ کسی اپنی فیلڈ وچ کوئی مطلب کمی نظر آتی پی ہے، تو انہوں کو رستہ نہیں ملتا پیا ہوندا، تو اساں اون فیلڈ دے حساب تو اساں جڑے اون دے ماہرین ہیں انہوں کو اساں اپنے پروگرام وچ دعوت دینے ہیں۔ تے اج دا سارا جڑا پروگرام ہے کیونکہ جویں جویں سارا سائنس ترقی کرندی پی ہے تے ہر چیز جڑی ہے نا وہ آندی پی ہے مطلب کمپیوٹرائز تھیندی ویندی پی ہے ہر چیز۔ اساں اج کوئی بھی چیز گننا وینا ہے، اساں کوئی ایئر ٹکٹ گنن ونوں، اساں کوئی بس دا ٹکٹ گنن ونوں، اساں بیٹھے ہیں موبائل تے کوئی استعمال کریں پے، اساں سوشل میڈیا دا استعمال کرندے پے، تے کوئی بھی اساں زندگی دا کوئی بھی ہن روزمرہ زندگی جڑی کام وچ اساں کرنا چاہنے ہیں، اساں کوئی پیپر بناونا چاہنے ہیں، اساں کوئی سوال کرنا چاہنے ہیں، تو وہ سارا چیز جو ہے نا وہ کٹھی دی گئی ہے وہ فیلڈ وچ آ گئی ہے کمپیوٹر دی فیلڈ وچ۔ تے این کمپیوٹر دی فیلڈ دے نال وابستہ جڑی پوری ایک براڈ جڑا کانسیپٹ ہے وہ ہے آئی ٹی دی فیلڈ دا۔ تے اج آئی ٹی دی فیلڈ تے اساں ڈسکس کرنے، تے اج دا سارا پروگرام بڑا اہم ہو سی انہاں اسٹوڈنٹ واسطے جڑے آئی ٹی دے وچ اون دے بارے سارے انہاں دے کچھ سوالات انہاں دے ذہن وچ کوئی خیال چیزاں ہیں کہ آئی ٹی دی فیلڈ وچ اساں کیویں کامیاب تھی سکدے ہیں یا آئی ٹی فیلڈ وچ اساں کیویں من سکدے ہیں۔ تے انہاں سارے پروگرام دے حوالے تو جڑا نا اساں اج دے سارے پروگرام دے وچ جڑے خاص مہمان ہیں سارے بخت بہار ہیں جنہاں نے سارے اج سب کو جڑا ہے جوائن کیتے۔ تے سب تو پہلے میں اپنے مہماناں دا تعارف کروے سا تواڈے نال، تے میرے سارے پہلے مہمان ہیں جڑے اج دے این پروگرام دے حوالے تو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ان دے نال انہاں دے تعلیمی حوالے تو کافی انہاں دا ایکسپیرینس ہے، تے لیکچرار بھی ہیں جناب فواد مرتضیٰ صاحب۔ بہت السلام علیکم شکریہ سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے السلام، بہت شکریہ شعیب صاحب، جزاک اللہ سر، خوش آمدید کے آ دیں تو سارے پروگرام صاحب کو اپنا قیمتی وقت دیتے۔ اچھا، ان دے نال سارے دوجی جڑے ماشاءاللہ کافی سارے نوجوانوں واسطے ایک مثال بھی ہیں تے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکچرار ہیں یونیورسٹی دے اندر، تے ان دے نال آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، تحقیق دے تے بڑا کام کریندے پن۔ مس رمشا احمد صاحبہ کو خوش آمدید میڈم۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، تے ماشاءاللہ ایویں نال سارے تریجے جڑے سارے مہمان ہیں وہ ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہیں پہ، تے ان دے نال نوجوانوں کو جڑا نا بغیر کسی معاوضے دے نوجوانوں کو بڑی ٹریننگز دینے، تے ان دے بڑا کافی انہوں دا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایک عزت تے شہرت دیتی ہے۔ جناب عثمان صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، بڑا ہی تہاڈا جڑا بخت بہار ہے پی ٹی وی نیشنل دا بہت چنگا انیشیٹو ہے۔ میں کل بھی تہاڈا ایک پروگرام ڈٹے اون تو پہلے ایک تساں سائیکالوجی تے کیتا بالکل نیڈ آف ٹائم ہے این وسیب واسطے نا کوئی ایسا چینل لازمی ہونا چاہیے جڑا ان ڈیمانڈ جو ٹریننگز ہیں یا ان ڈیمانڈ جڑی سکلز وغیرہ انہاں دے بارے ایجوکیٹ کریں۔ بڑا پیارا تہاڈا چینل ہے ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر تہاڈا ماشاءاللہ۔ سب کو ساڈا مقصد سارا یہ ہے پروگرام دے وچ کہ سارے جڑے نوجوان ہیں اصل وچ اساں چاہنے کہ سارے نوجوانوں کو ایک رستہ مل ونے، تے ہی وجہ تو یہ سارے پروگرام انشاءاللہ نوجوانوں تک تے انہاں دے والدین تک یہ سارے ساڈا ایک آواز ہے جڑا سا بلند کرنے پہ کہ سارے نوجوان جڑے ہیں جنہاں دا ٹیلنٹ ہے وہ کی طریقے نال اگوں ودھ سکتے ہیں۔ تے اج دے اوتے جڑا سارا بیسک جڑا سب کو سوال ملے جڑا سارے نوجوانوں دا سب بیسک سوال ہے، میرا فواد صاحب تو پہلا سوال ہے این حوالے تو سر کہ نوجوانوں سر سوال ہے آئی ٹی کیا ہے، کیوں ہوئے، کیویں اساں اون دے وچ بن سکتے ہیں، این حوالے تو سب کو سارا نوجوانوں کو گائیڈ کرے سو۔ سر نوجوانوں واسطے نا میرے حساب نال تا اج دے نوجوان کو نا اگر آسا آکو نا کہ کو آئی ٹی دا پتہ گیا نہیں تو یہ غلط ہو سی۔
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਨਾ ਮੈਚੁਰ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को बड़ी ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ को ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ को ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ आपको ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਦ ਚੈਨਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਂਦਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਂਦਾ ਵੇ ਉਹ को ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਂਦਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਕहीं ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਈਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨੂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਫੀਲਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵੇਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ AI ਆਵੇਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਵੇਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਆਈਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ को ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਤ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਈਟੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ को ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ को ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ को ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੈਮ ਰਿਮਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ AI ਦਾ ਇਹ AI ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AI ਸਿੱਖੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ AI ਦਾ क्या कॉन्सेप्ट है इनके बारे में सबको आगाह करो जी AI जो है असल में अगर आप उसकी पहले डेफिनेशन पे जाएं तो वो ये है कि AI जैसे इंसान वो काम जो इंसान कर सकते हैं यानी हम किसी चीज़ को रीज़न कर सकते हैं हम वजूहात देते हैं हम डिसीजन लेते हैं ठीक है तो ये वो काम है जो हम करते हैं तो असल में AI जो है वो यही कुछ करती है लेकिन AI को ट्रेन कौन करता है हम इंसान ही करते हैं आपके पास आजकल बड़ी कॉमन एग्जांपल है बड़ी मशहूर है ChatGPT इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक AI ही है ठीक है उसने ट्रेन किया यानी हम लोगों ने उस पर काम किया उसने वो लर्न किया उसके बाद वो हम जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो हमें वो आंसर देता है जो एक ह्यूमन दे सकता है आपको आंसर तो यही AI है एक्चुअली लेकिन AI आजकल AI जो है वो हमारा फ्यूचर है जैसे ITCS के बगैर आप कहते हैं गुजारा नहीं सर ने बात की अभी बिल्कुल ठीक की कि ये हमारी यूँ समझे कि जैसे ब्लड है ठीक है अच्छा ये इसी में आपसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे AI है अक्सर ये सवाल आ रहा है कि AI इंसानों की जगह ले लेगी जैसे अभी आपने कहा कि बल्कि AI को हम सिखा रहे हैं तो ये इंसानों की जगह ले लेगी क्या ये बात वैलिड है मेरा नहीं ख्याल मेरा अपना जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ठीक है AI बहुत समझदार है बहुत हम रोबोट्स देखते हैं आप लोगों ने देखे होंगे सबने रोबोटिक्स उसमें डिफरेंट फिर आगे फील्ड आ जाती हैं ठीक है तो उसमें AI को हम ही ट्रेन कर रहे हैं तो जो जिसको बनाने वाले हम खुद हैं तो वो हमारी जगह नहीं ले सकती तो ये एक तरह से कह देते हैं कि नेगेटिव थोड़ा सा जाने के लिए उसको कह देते हैं ठीक है बहुत समझदार है हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं कैलकुलेशन में वो फ़ौरन कर देती है हम थीसिस लिखते हैं सिनॉप्सिस लिखते हैं उसमें हमें हफ्ते लग जाते हैं आप ChatGPT पे डालें तो जल्दी आ जाता है आंसर लेकिन ये चीज़ें मतलब दोनों तरह से चलती हैं ना अब बैलेंस करना वो हमारे ज़िम्मे हम उसको अच्छी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम गलत कामों के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमारा अपना है सही गलत कामों के लिए भी मतलब हम अपने पर देख सकते हैं कि कैसे उसका फायदा भी उठा सकते हैं नुकसान भी हर चीज़ का फायदा नुकसान है अच्छा मेरा सवाल उस्मान साहब से है उस्मान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪ ਰੇਟਡ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗਈ ਇਕੱਠੇ पहला सवाल तो बड़ा आसान है तो दूसरा सवाल थोड़ा मुश्किल है अच्छा तो पहला सवाल है कि कौन फ्रीलांसर कौन होंगे देखें फ्रीलांसर ना सादा लफ्ज़ां मैं तो दसावां सैल्फ इंप्लॉयड है यानी एक बंदा है वो 9 to 5 कहीं दा पाबंद के यानी ही इज़ नॉट समवन क्योंकि सवेरे उठने ते वल 9 बजे दफ्तर पहुँचने वल शाम को कोई उनका टाइम क्या नहीं कि वेले बॉस को छुट्टी देंगे फ्री लांसर जोड़ा है रिमोटली वर्क करेंगे अपने आवर्स आप शेड्यूल करेंगे तो अपनी मर्जी की निश आदि स्पैसीफिक मार्केट सैगमेंट को उस स्पैसीफिक मार्केट सैगमेंट जो काम लभेंदे ये प्रोजेक्ट बेस्ड
ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਰਲੀ ਜੌਬਸ। ਆਵਰਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ $10 ਪਰ ਆਵਰ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को पिच करेंदे हो, सेल करेंदे हो, उस हिसाब नाल तुसां प्रोजेक्ट्स ते बिडिंग लेंदे हो आवरली बेसिस ते ताकू प्रोजेक्ट मिलते हैं। कुछ होंगे फिक्सड प्रोजेक्ट, वो ताकू आडे कि मैं $100 मैं मेरा बजट है तो मेरे को ये जड़ी ना तुम शीट बना के दियो फॉर एग्जांपल इन अ सिंपल वर्ड्स। तो ये बेसिकली ना फ्रीलांसर होंगे, ये इन तरह उन्होंने ना एक्टिविटी होंगे। बाकी उनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म ते वन के बाल जड़े अपनी प्रोफाइल बने दें। प्रोफाइल बनाने तो बाद वो बेसिकली मार्केट प्लेस होंगे। मार्केट प्लेस ये होंगी है कि दो यूजर्स को ना वो कनेक्ट करें पई है, यानी एक ये है सैलर, एक है बायर। एक बंदा है अपनी सर्विसेज सैल करेंदा पे, दूजा बंदा है वो उन सर्विसेज गिनना चाहते, उन्हें वंज के वो मार्केट प्लेस के उत्ते वो जॉब पोस्ट कर दी है। ठीक है कि मेरे को एक बंदा चाहिए है, जरा फॉर एग्जांपल ये वीडियो बनती पई है तो वीडियो एडिटर चाहिए मेरे को, ठीक है, इतना उनका बजट उसी वो जाके वो बिड लेंदे। अगर वो बिड उनको मैच करें दिए वालों कम्युनिकेशन स्टार्ट करें दे तो वाल उनको ना प्रोजेक्ट अवार्ड कर देंगे। वंस द प्रोजेक्ट इज़ अवार्डेड वाल जी जरा फ्रीलांसर है उनको डिलीवर करने, और जी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको समझ के उनके हिसाब नाल उनको डिलीवर करने। तो दिस इज़ हाउ फ्रीलांसिंग वर्क। तो एक जनरल मैं आपको एक डेफिनेशन दसाई है। बाकी उम्र का ना इंदे जिवें फवाद साहब ने दसाया उम्र की इंदे विच कोई कैद नहीं। यकीन करो अजकल के बाल ना बहुत ज़्यादा इनफैक्ट दे आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन। बाज़ औकात बंदे को ये दिल करेंदे कि यार इनको थोड़ी ज़रा घट इन्फॉर्मेशन दो। कल मैं कितना गया वो बेगम नलाली थी मुल्तान जी, तो वो छोटा बाल हो कहते स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम गिन के दो, स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम गिन के दो। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि बाल को केड़ी इन्फॉर्मेशन केड़े करैक्टर्स नाल तुसां इंट्रोड्यूस करावने। साढ़े अपने ओरिजिनल करैक्टर हैं पे ना, तो साकू लोड़ क्या नहीं। तो ये बड़ा मसला है कि बालों को केड़ी एज क्या है भाई, एज तो बड़े छोटे छोटे यूट्यूबर बाल बने पे, मिलियंस इन सब्सक्राइबर हैं, काम भी करेंदे पे, छोटे छोटे बाल हैं, लोगो डिजाइनिंग करेंदे पे, उम्र दी इनके अंदर कोई कैद क्या नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान तक को पता है ऐसी ज़मीन है, अरफा करीम एक भाई अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद करे, बाल कितनी छोटी बाल है जी, माइक्रोसॉफ्ट है तक पता है कि उन्हें जो एग्जाम पास किया बहुत छोटी उम्र पास किया। तो टैलेंट की कमी क्या नहीं, लेकिन इतना थोड़ा जिहा ब्रेन ड्रेन है। अगर मैं कोई ज़्यादा डेवो तक थोड़े जे फिगर्स में पहले सामने रखने वहाँ फिगर्स पाकिस्तान जी 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 सर पाकिस्तान जो ना पाकिस्तान 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, यानी एक पॉजिटिव तक दसेंदा पियाँ 2.37 मिलियन फ्रीलांसर हैं जिन्हें जो 5 लाख ते 50,000 फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो एक होंगे ऑनलाइन लेबर इंडेक्स, तुसा नैट ते वेचो ना OLI लिखे सो ऑनलाइन लेबर इंडेक्स लिख सो, और पूरी साइट आवे सी ताकि सारे कंपैरिजन ड्रा करके देसी कि भाई ये पाकिस्तान को तुसा कंपेयर करो उनके हिसाब नाल पाकिस्तान चौथे नंबर ते बहुत वड्डी फ्रीलांस की मार्केट प्लेस है। जिवें IT की मैशियत के हवाले नाल आदे पिया से तो पाकिस्तान का मेन मसला ये है ना साढ़े को यानी डॉलर्स क्या नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो फॉरन रेमिटेंस गिन के आवन वास्ते एक बहुत वड्डी जड़ी है ना अपॉर्चुनिटी है कि असां अपने बालों को ट्रेंड करूँ IT तो डोमीनेट करवानू। साडा जो हमसाया मुल्क है वो क्यों डोमीनेट करे, ऐसा डोमीनेट करूँ। साढ़े को ऐसे प्रोजेक्ट्स होवन तो अलहमदुलिल्लाह गवर्नमेंट कोशिश करेंदी पई है, कोई नज़र आंदा भी है, इंडिविजुअली अपने तौर पर लोग करेंदे पे, मैं भी वॉलंटरी कोशिश करेंदा बालों को एजुकेट करने की। तो ये थोड़ा जिहा मैं तक दुए सवाल एड्रेस कर दिते। नहीं नहीं सर बड़ा प्यारा दसे वे। अच्छा जिवें तुसीं आखे काबिलियत सारे इत्थे मौजूद है पई ते माशाअल्लाह बड़े बाल काबिल हैं। मेरे फवाद साहब तो सवाल है सर काबिल तो बाल सारे को बहुत हैं, लेकिन एक IT एक्सपर्ट बनने वास्ते क्या काबिलियत चाहिए या उनके वास्ते क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या डिग्रियाँ चाहिए कि? अच्छा जी ये बड़ा प्यारा तो सवाल किया शोएब साहब। इन्हें ये है कि ना IT एक्सपर्ट बनने वास्ते ना अगर अजकल जिवें ऐसा क्योंकि कॉलेज बालों को पढ़ाते पे ऐसा दे दें कि IT दे आवन नाल या IT दा बूम आवन नाल बे जेह्ड़े फील्ड्स हैं ना प्री इंजीनियरिंग या प्री मैडिकल उंदे च बालां दी स्ट्रेंथ बड़ी घटती गई है। मतलब हर बाल आंदे आदे जी मैं जेह्ड़े ना IT दे ICS करने या IT दी फील्ड बनने। अच्छा वो ई सोच ना लांदे कि इत्था आके मैं कोई IT दा एक्सपर्ट बन वैसा, ठीक है जी, या जी को असां आख सकते हैं जी पावर बन वैसा। तो वो ये 2 साल डिग्री करने नाल वो एक्सपर्ट नहीं बनता। अच्छा वो कुछ समझ आती है क्योंकि उनकी मेन रीज़न ये है कि साढ़ा जो कंटेंट है ना जरा कि अस फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर बालों को पढ़ाते पे वो बड़ा मिडल लेवल का है, मतलब कि बड़ा लो लेवल का है। जबकि इंटरनेट जो एक्चुअल जरा कि जी को स्किल्स आते हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं या वो तो ज़्यादा अब थी चुके हैं। तो उनके बाल को शुरू तो प्रॉब्लम थी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुण सारे बाल इतना मैच्योर है या ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं बालों को कि उत्थां वो रजिस्टर थी गई या छोटे छोटे कोर्स करके उन्होंने नाल आपस मतलब कि वो स्किल्स वगैरह सीख के तो अपनी ग्रूमिंग करेंदे पे। तो इनके वास्ते डिग्री का इतना ज़्यादा रोल क्या नहीं।
मेन ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਫੀਲਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਗਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਵੰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਬਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੋ ਅਸਾਂ ਮੀਟਾ ਆਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਠਾ वने ना बाल को पता कहना चाहिए अक्सर बिजनेस अकाउंट बनाने में हुणे बना गिनसा लेकिन वो कुछ चलाने वास्ते उनके एड रन्स करने वास्ते काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेक्निक्स होने जेरा कि कोई एक एक्सपर्ट बंदे दसा सकते जिंदे नाल बाल का काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकते तो इन वाले नाल अवेयरनेस अलहमदुलिल्लाह हुण बहुत ज़्यादा है तो लोग काम करेंदे भी पेन ते बाल सीखते भी पेन तो इहदे च डिग्री का कोई इतना खास रोल है नहीं लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि बाल बिल्कुल डिग्रियां छोड़ के तो स्किल के नाल चला मैंने वालों को अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकते कल को कितने जॉब वास्ते वैसी एक्सपर्ट तो उसी अर्निंग करेंदा भी उसी सारा कुछ उसी लेकिन डिग्री ना होने की वजह तो वो बैक फुट ते को आना पौंदे जबकि अगर वो नाल उनके जो कंपीटीटर हो सन जिसले अस ग्लोबली वेने ना मतलब कोई भी कंट्री है तो उनके ये नहीं देखा वह कि बाल को कम कितना आते नाल उनके को डिग्री भी रिक्वायरमेंट होती है कि तारे को डिग्री केरी है या तुसा कितनी एजुकेशन है तो स्किल के नाल डिग्री दोवें चीज़ों का होना जरूरी है अगर तुसा ज़्यादा तरक्की करना चाहते हो जी मैं मतलब ज़्यादा तरक्की करना चाहते हो तो आपको डिग्री का होना ज़रूरी है मैडम जैसे आप पढ़ा रही हैं कॉलेज में मतलब जैसे आप टीचर हैं यूनिवर्सिटी में तो डिग्री जैसे अभी सर ने बताया कि वैसे डिग्री की ज़रूरत नहीं है लेकिन डिग्री होनी चाहिए ताकि उससे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो अब आईटी के अब जैसे मतलब एक तो आईटी आ गया इसके सब डिविजन्स कौन से सब मतलब कौन कौन से नीचे आगे सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे एआई की आपने बात की इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं जी यूनिवर्सिटी में सर ने जैसे बात की मैं उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी कि डिग्री की ज़रूरत आपको इसलिए होती है ताकि आप अपना पाथ आइडेंटिफाई कर सकें कि आपने किस तरफ जाना है आपका इंटरेस्ट नेटवर्किंग में है आपका इंटरेस्ट एआई में है आपका साइबर में है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है ये सारे जो मैं नाम ले रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं एज अ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और अगर आप सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं यानी पहले दूसरे 1 to 4 सेमेस्टर जो है उसमें बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं बेसिक्स में जब बच्चा ऑब्वियसली जब उसको समझ आने लग गई है उसको पता चल गया है कि मैंने ये चीज़ें सीख ली हैं जो आगे सेमेस्टर्स होते हैं उसके लिए आसानी हो जाती है ये समझना कि मैंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है जहाँ पर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ा सकता हूँ तो अब जैसे आप बात करें आगे तो सीएस जो है वो हमारी बेसिक है मेन जैसे मदर होती है रूट होती है उस अम्ब्रेला के नीचे हमारी बाकी आती हैं आईटी डाटा साइंस एआई साइबर सिक्योरिटी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ये सारी उसके नीचे की फील्ड्स हैं तो बेसिक जो होती है वो हमारी सीएस होती है कंप्यूटर साइंसेज होती है तो ये सारी उस छत के उस अम्ब्रेला के नीचे आती है और अवेयरनेस की बात जैसे हो रही है तो अब बच्चे थोड़े से स्टूडेंट्स तो वैसे ही हमसे भी आगे हैं मतलब हमें कोई इशू होता है कोई पीसी का कुछ भी हम बच्चों से कहते हैं ये ठीक कर दें तो वो हमसे आगे हैं लेकिन बच्चों को जब प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो उनको पता चलता है कि हमने किस तरफ जाना है जैसे अब हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं सेमिनार्स करवाते हैं वर्कशॉप्स करवाते हैं उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं बाकी ये कि हम बच्चों को कहते हैं आप प्रोफाइल्स बनाएं आप चेक करें जॉब्स किस चीज़ की आ रही हैं क्या मांग रहे हैं आपसे मशीन लर्निंग मांग रहे हैं आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें और वो भी एक बात वही आगे कि हमारी जो एकेडेमिया का कोर्स है जो कंटेंट है वो होता है अपडेट लेकिन उसमें एक रेवोल्यूशनाइज नहीं आता वो मतलब वो चीज़ें चलती आ रही हैं मैंने भी वही पढ़ा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही पढ़ाती हूँ सही मतलब आप ऐसे है ना कि जैसे नए स्टूडेंट जो हैं मतलब आप जो पढ़ रही हैं वही पढ़ा रहे हैं लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वो बच्चे हमसे भी आगे निकल गए हैं तो उसकी क्या मतलब तरीका नजर आता है कि मतलब वो बच्चे फिर पढ़ तो वही रहे हैं लेकिन फिर आगे कैसे जा रहे हैं वो क्या उनकी स्किल्स हैं या कोई और उनका एक इंटरेस्ट होता है थोड़ी सी और दूसरा ये कि जितनी हमारे पास अब इंटरनेट की रिसोर्स है जितनी हर किसी के पास मोबाइल आम है इंटरनेट आम है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बल्कि हम स्टूडेंट्स को बाउंड ही नहीं कर सकते क्लास में कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें ठीक है तो हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उनसे कह सकते हैं कि आप ढूंढो कि दुनिया में क्या चल रहा है
मार्केट जो बाहर इंटरनेशनली जो मार्केट है उसको क्या चाहिए, तो ये बेटर है कि हम वो आइडेंटिफाई करके हम बच्चों को उसी में एक्सपर्ट बनाएं। अच्छा, ऐसे जैसे एक और सवाल आपसे ही मेरा आ गया कि आप यूनिवर्सिटी मतलब आप उसको डील कर रही हैं चीज़ों को, तो कोई इस तरह के कोर्सेज भी हो रहे हैं कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लें कि भाई कौन कौन से मसाइल हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमारी सोसाइटी में या आने वाले जो मुस्तकबिल में, और उन्हीं के छोटे शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं किसी गवर्नमेंट इदारों में, सरकारी इदारों में? इसके लिए एक तो ये है कि अगर जो मसाइल हैं उनमें तो हम जब मास्टर्स करते हैं तो उसमें रिसर्च होती है, वो तो आपकी मैंने आपको बताया पहले मेडिकल की फील्ड है, चाहे क्योंकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ तो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत काम हो रहा है हमारे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आईटी और एआई और सीएस के बगैर तो अब चलती ही नहीं है यूनिवर्सिटी। अच्छा उस्मान साहब, मेरा सवाल थोड़े को नहीं होई पिया क्योंकि तुसां इंदे प्रैक्टिकली तुसां एक एक्सपीरियंस दे तुहाड़ा बाल चाहते कि साडा माशी तौर ते ना मतलब सारे कोन चीज़ां कोई नहीं ते असा फौरी कामयाबी भी चाहने हैं, फौरी असा माशी तौर ते स्ट्रॉन्ग भी थी चाहने हैं, तो इंदे कोई कोर्सेज वगैरह कोई जरिया है, कोई मतलब फ्रीलांसिंग का कोई आसान जरिया जो सारा बाल सीख के जल्दी कामयाब थी बने? सर ये तो पहले ना जो एक डिस्कशन चलती पई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है, मैं वो ना कंक्लूड करे सा। जी जी जी। मैम ने जो गाल की है, फवाद साहब ने की है, इंदे च ना मेरा जड़ा अपनी ज़ाती राय है वो है कि इन्हां दुआ शियां को ना कनैक्ट करने की ज़रूरत है, डिग्री ते स्किल इनको कनैक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना दुनियावी हिसाब नाल तरक्की याफ्ता उन्होंने मुल्कों ना छोटी उम्र तो ही बच्चे का फिगर आउट कर देंगे कि ये बच्चे के अंदर कौन से यानी की स्किल की शायद पैशन है तो बच्चे ने किस तरह बढ़ने। इतना साढ़े क्या होंगे कि एक बंदा आप डॉक्टर नहीं बन सका, उन्हें अपने बाल को बदला गिनने हूँ तू डॉक्टर बन, ये मेरा ख्याल है एक डिलेमा है, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा जो है ना एजुकेशन सिस्टम से काम करने की ज़रूरत है। डिग्री बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर उनको स्किल नाल कनैक्ट किया वने तो ये जी शायद बंदा MBA करके बंदा डिसाइड करेंदा पे होंगे ना, तो जिवें मैं MBA करेंदा पे ना, तो मेरे दोस्त है मेरे को तीजे समैस्टर मैं तीजे समैस्टर को आख्या यार असल मेरी ना बेस कह रही ना इन वास्ते मेरे को ना कॉस्ट अकाउंटिंग समझ नहीं आती पी, वो आधे तेरा तीसरा समैस्टर है हाली तक तेरी बेस ही नहीं बनी, तो वो बेस ही बनती रही है, वो बेस होंगी है शुरू में तुसां बालों को पढ़ाओ GW बेसिक, ठीक है, तुसां पढ़ेंदे पे ICSH जनाब C लैंग्वेज या बिल्कुल और जिन्हों का कोई तो ई लेवल तक आके उनका पहले ही डिटरमिन थी गया होया कि उन्हें की फील्ड बनने, तो ई ICS के लैवल आके वो तो कम करना शुरू कर देगा। अच्छा, बड़ी अहम गाल की तुसां कि जिवें मतलब बाल इतने देर नाल आके उनको पता लगता पे होंदे, मैं केड़ी MBA च आके पता लगता पे होंदे, तुहाडा अपना एक्सपीरियंस है तुसां कदन शुरू की थी, कितना अरसा थी के तो तुहाडी मतलब स्टार्टिंग कीमें है क्या है, कोई तो अपना तजर्बा इन बारे? जी मेरा तजर्बा ये है कि मैं जॉब करेंदा एक कंपनी एज एन IT असिस्टेंट, MBA मेरा कंटिन्यू है, तो उन दरमियान ही ना मेरे को एक दोस्त ने दसाए कि यार ये दसा ये जी वैबसाइट है उन वेले ना ओडेस्क होंगी है, हुण है अपवर्क, एक अपवर्क है एक E-Lance है, इन्होंने ज्वाइंट सॉरी एक ओडेस्क आई एक E-Lance आई, ओडेस्क ते E-Lance ने ना ज्वाइंट वेंचर करके एक नई कंपनी बिल्डअप कर दी थी अपवर्क, वो पाकिस्तान का सब तो बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है, और उन्होंने आपस में यानी वो मारिश थी कि दो कंपनियां, तो उन वेले होंगे ही ओडेस्क, उन्हें मेरे को आखे यार उस्मान तो थोड़ा जिहा टैकी हैं ज़रा चेक तक कर, ये ठीक है ये स्कैम तक है नहीं ये वेबसाइट, मैं गया मैं वेबसाइट चेक की थी, मैं उनको फीडबैक दिता, मैं क्या भट्टी साहब ये तो बिल्कुल जेन्युइन शे है, ये तो मार्केट प्लेस है, इट्स अ परफेक्टली फाइन यानी कॉन्सेप्ट, तो मैं उनको दसाया, तो उन तो बाद मैं अपनी ड्यूरिंग द जॉब अपनी मैं प्रोफाइल भी बना की थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करना शुरू कर दिता बेस्ड ऑन माई गिवन स्किल्स, क्योंकि उन वेले ना साढ़े को इतने रिसोर्सिस कहना हैं जितने हुण रिसोर्सिस हैं, हुण कोई बंदा ये नहीं आख सकता कि मेरे को स्किल कहनी तो मेरे को कोई वे आउट कहनी कितने बन के मैं वो सीखा, हुण यूट्यूब के उत्ते पूरी प्ले लिस्ट पाई है, वो यानी उंगली पकड़ के तो चले पे, ठीक है, तो वल मैं उन तो बाद मेरे को पहला प्रोजेक्ट अवार्ड थिया, तो नाल ही उन्हें मेरे को थोड़ा जिहा बोनस दे दिता, मैं कह ला बहु है मैं जॉब को रिजाइन किया, वल मैं एक काम स्टार्ट कर ये पर्सनल वैसे क्वेश्चन आ गया दिन वैसे भाई बंदे को ना उनके तनख्वाह का नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अस अपने नौजवानों वास्ते पूछते पे कि क्योंकि ये एक मोटिवेशन है, माशा सारे वास्ते एक मोटिवेशन हो, नौजवान तुसा जो पहली जिवें शुरू किए तो बोनस मिला, पहली इनकम कितनी आई तो हुण मतलब तुस एक माशाअल्लाह एक अच्छी हैंडसम गिनते पे हो, तो जिवें तुस आके भी पहले इतने मौके कहना हुण मौके ज़्यादा हैं, तो इनके मुताबिक अज का जो बाल अगर शुरू करेंगे तो कितना अपॉर्चुनिटी उनके वास्ते कितना मौका है कि वो अच्छी अर्निंग चाह सकते सर निस्बत? जी बहुत वड्डी अपॉर्चुनिटी है, बहुत वड्डी मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट है, असल पता है क्या मेन शय होंगी है जो आइडिया, लोग पता है क्या करेंगे साढ़े इतना ना भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है, असा ही उनके विक्टम रह गए हैं, भाई एक बंदा एक फील्ड लग गया
ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ICS ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ICS ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ MBA ਦਾਖਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਵੀ MBA ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜ ਚਾੜ ਬਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕरेंगे सोचेंगे क्या नहीं पता क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨ ਸ਼ੈ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ को ਲਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ को फाइंड आउट करने, a specific market segment in which you want to work. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। असा फर्स्ट थिंग समझ गए हैं कि बस उन्हें कितना तो मैं नहीं, पहले अपनी निश फाइंड आउट करो, गैप फाइंड आउट करो। इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाल ही भी। पिछले डी में को तुम मेरा पूछा ना, मैं असल कम 10 आवर्स पर वीक मैक्सिमम कम करेंदा, मैं बहुत थोड़ा कम करेंदा मेरी, क्योंकि तुमको पता है, तो आप भी जानते हो मेरी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं सिर्फ डेली दे 1 घंटा बस कम करेंदा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है नौजवान को ज़्यादा पैशन है, ज़्यादा टाइम है, वो कर सकते। अब मसला ये है, मेरे को एक बंदा मिले, या हूँ मैं तो ना लोकल दसदा पिया कि लोकल कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। एक बंदा मेरे को मिले, मेरे को आदे यार तू सारा ये थोड़ा बहुत जान दें IT का, तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी थोड़े जान दें, तो मेरी सैनिटरी शॉप है मेरी, तो मेरे को ना कोई मेरी सेल तक करवा दे। मैं सिर्फ, मेरा इशू पता है क्या है, मैं अपनी प्रोडक्ट रोक नहीं सकता, 0 प्रॉफिट तो बिकवा दे, मेरा सामान ज़रा वो निकल बने, मेरा जड़ा गोदाम है वो भरा पे, सेल में कुछ चाहिए है। हुण कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इकबाल जी को ऑनलाइन स्टोर बनावना आंदे, फेसबुक ते सोशल मीडिया कैंपेन बनावनी आंदी है, वो उनदे नाल क्या करे, नेटवर्क करे, उनदे नाल नेटवर्किंग करे, 0 इन्वेस्टमेंट है, $10 दी डोमेन आवेंदी है, ठीक है, $5 दी होस्टिंग आवेंदी है, उत्था मान के अपना वर्डप्रेस ते फ्री ऑनलाइन स्टोर बनावे। ये भी नहीं कर सकता, फेसबुक दा पेज बनावे, उनको प्रमोट करे, व्हाट्सएप दे ग्रुप्स बनावे, उनको प्रमोट करे, तो वो वर्किंग करे। बहुत ज़्यादा ये तो बिल्कुल लोकल लेवल से, बेसिक लेवल से जो बंदा कुछ नहीं कर सकता ना, वो कम घट टू घट ये कर सकते अपनी एक्सेस से। इंदे ये भी नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म मेरे को भाई इतनी एज हो सी तो मेरे को प्लेटफॉर्म अलाउ करे सी प्रोफाइल बनावना, मेरे को ID कार्ड वो शायद जरूरी नहीं होंगे ना प्लेटफॉर्म पे, ID कार्ड वगैरह सारी चीज़ें जी हाँ, प्रोफाइल बनानी पौंदी है ना, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दसो, वल वेरीफिकेशन आसी, वल वेरीफिकेशन है तुम ID कार्ड वगैरह सारी चीज़ें देंगे, ये थोड़ा जिहा हैजल है। तो वो जेडे बाल हैं वो क्या कर सकते हैं, जिवें फवाद साहब हैं, अस हैं, बहुत सारे लोग काम करेंगे, उन्होंने नाल अटैच थी उन्हें, ठीक है, उन्होंने स्किल भी बिल्डअप की उससे भी बना सकते हैं जी, अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट पे भी हाँ, बना सकते हैं, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। सही। अच्छा मैम, जैसे बड़े कीमती गल दसदे पे तुम बड़ा सीधा रास्ता ही दसा दित्ता इस बारे में माशाल्लाह। ते मैडम तुहाडे कोल इस सवाल है मेरा कि तुसा जिवें मतलब पढ़ाइंदे दा पियो, तुसा किताबी हवाले तो बालों को गाइड करदे पियो, आप ही कहीं रोजगार दे उहदे कंडीशन आए हो कदें, मतलब AI दे जरिए ना कोई रोजगार हासिल कर कीता होवे? नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। सही। और बल्कि मेरा ये होता है कि हाँ स्टूडेंट्स ही सिखाएं मुझे, वो करते हैं बल्कि। और ये बात जैसे सर कह रहे हैं, एज की कोई लिमिट नहीं होती। पहले सेमेस्टर में हमारे पास बच्चे आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है उनको, मतलब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे कहते हैं ये कर दें, एक पोस्टर बनाना है ये बना दें, तो ये चीज़ें एक इंटरेस्ट की भी बात होती है। अच्छा, जैसे एक सवाल ये पिया कि इन तुहाडे नाल, क्योंकि तुसां रिप्रेजेंट करे पे एक फीमेल दे वाल तुम, मेल वास्ते ते फीमेल वास्ते ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी किंदे वास्ते, फीमेल इंदो ते किवें वर्क कर सकदे ने, फीमेल वास्ते क्या अपॉर्चुनिटी? मैं जरा किस में, फ्रीलांसिंग में या नहीं ओवरऑल, मतलब तुहाडे जेहड़े सब्जेक्ट? नहीं, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं एज अ फीमेल अल्हम्दुलिल्लाह मेल्स के साथ काम करती फ्रीलांसिंग हूँ। विच ही मतलब जी फ्रीलांसिंग तो और आसान है, वो तो है रिमोट, वो तो आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो मतलब ये इसमें कोई आप नहीं कह सकते कि ये जेंडर है, मतलब इवन आप फीमेल्स के लिए ज़्यादा एक तरह से है कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, बहुत ज़्यादा सूटेबल है फैमिलीज़ के लिए, या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो तो फीमेल्स। अब हमारी तो काफ़ी सारी स्टूडेंट्स इस फील्ड में काम कर रही हैं माशाल्लाह से, बड़ी खुशी होती है। एक मतलब कि वो हम सुनते थे ना कि जो खुशी होती है ना किसी भी बंदे की प्रोग्रेस है, 2 लोगों को होती है, एक तो माँ बाप को होती है और एक टीचर्स को होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, जब हमें हमारी जो मेन सक्सेस है ना, जब कोई बच्चा आके बताता है सर आपसे पढ़ के गए थे, आपने साथ साथ चीज़ें बता रहे थे, आज हम इस फ़लाँ जगह पे जॉब कर रहे हैं या फ़लाँ इदारे में जॉब कर रहे हैं, इतनी सैलरी ले रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। मतलब कि बंदे को एक एनर्जी मिलती है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है और खुलूस नीयत के साथ किया, तो अल्लाह ताला ने उसका रिवार्ड दिया है और बच्चे जो है ना बिल्कुल प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन था, जो इदारा बनाने का भी मेरा जो मकसद था, वो यही था कि बच्चों को डिग्री के साथ साथ ना स्किल उनको दिए जाएं, ताकि जब वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जाएं तो उनको अपने यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंस वो खुद बेयर कर सकते हैं। तो सब मेरे को डिग्री दे नाल स्किल तो तेरे को सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जिवें डिग्री दे नाल तुसीं स्किल दी गल करदे पियो, साडे तकरीबन पाकिस्तान विच तकरीबन हर साल जेहड़ा ना कोई 70-75 हज़ार IT दे ग्रेजुएट पास थी के निकलते हैं, लेकिन जेडे मार्केट को मार्केट में आके ना जेड़ा अपना आपको प्रॉपर तरीके नाल वर्क करके देन वो तकरीबन 3-3.5-4 हज़ार रुपया।
ਕਿਤਾ ਗੈਪ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਕਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, क्या तो अपना क्या तजावीज़ है हमारे? ये जो है ना, ये शोएब साहब आपने जो है ना ये $1 मिलियन का जो आपने क्वेश्चन किया है, इसका जो बेहतरीन आंसर ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो शुरू से ही हमें ना ये कहानियाँ सुनाई जाती है लालच बुरी बला है, और हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब कि हम मेहनत नहीं करना चाहते और हम कामयाब होना चाहते हैं। हम क्लास में गए ना कि कितने बच्चे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, तो सारे बच्चे कहेंगे हाँ जी सर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो जब मेहनत का पूछेंगे तो वो बैक फुट पे चले जाएंगे, जी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो जब बंदा मेहनत नहीं करता ना तो फिर उसे धक्के खाने पड़ते हैं, वो एक ना एक दिन वो भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उनकी निस्बत जो शुरू से ही बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर, कुछ कर दिखाने की कुछ आग होती है, तो वो बच्चे बड़े जल्दी कामयाब होते हैं। हम तो जाहिर बात है बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि जी आपने इस तरीके से काम करना है। अच्छा मुल्तान इतनी गाल तो थोड़े नाराज होते हुए कटिंदा पे, क्योंकि एक बड़ा इंदे उत्ते गाल में गुजरन जा गई मुल्तान विच जेडे इदारे हैं इंदे विच काम करेंदे पे, सरकारी इदारे या केड़े इदारे जेडे इंदे उत्ते काम करेंदे पे, ताकि सब बालों को दसूं कि इन इदारे च समझ के स्किल हासिल कर सकते हो। अब तो सर मुल्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में ना वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लगातार, मैम आप इस बात को सेकंड करेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मंथली बेसिस पर कोई ना कोई कोर्स लॉन्च हो रहा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो डिजी स्किल्स के नाम से पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पर, या इसके अलावा यूथ के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उन्होंने यूथ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, उसमें बड़े एक्सपर्ट आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेन यह है कि बच्चे ने काम करना है। अच्छा हमारे बच्चे जो फंस जाते हैं ना वो कहाँ पे, स्कैम्स में, कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो स्किल नहीं होते, वो असल में स्कैम होता है। वो एक डबल शाह वाली गेम है जिसमें बच्चे घर वालों से पैसे लेके इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता लगता है वो कंपनी फ्रॉड थी और कंपनी वो बेसिकली स्किल नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और किसी भी टाइम पर वो कंपनीज क्या हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों से कि यूनिवर्सिटी सर ने से बात की डिजी स्किल्स, इसी तरह हमारी HEC जो है कोर्सेरा के कोर्सेज बच्चों को फुल प्रोफेशनल कोर्सेज दिए जाते हैं। गूगल डाटा एनालिटिक्स की जॉब है, बच्चों को ये काम नहीं आता तो वो सिखाते हैं। वेब डेवलपमेंट है, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं इसको अवेल करते, मतलब आपको फ्री में, कोर्सेरा एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो वो आपको फ्री में कोर्सेज दे रहा है। उसके अलावा आउटरीच के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आउटरीच के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो करवाते हैं। स्टिल अभी भी कल लास्ट डेट थी वेब डेवलपमेंट के कोर्स की अप्लाई करने की हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये इस तरह की चीज़ें तो हर यूनिवर्सिटीज़ में आजकल चल रही हैं, और ये तो है कि साथ एक इम्प्रूवमेंट आ रही है बेटरमेंट के लिए। लेकिन अब स्टूडेंट अगर थोड़ी मतलब अपनी स्पीड स्लो रखता है या वो जस्ट कोर्स के ऊपर ही कर रहा है कि बस उसी पे डिपेंडेंट रहना है, तो वो फिर स्टूडेंट को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। सही, इसमें स्टूडेंट की जड़ा है पिया ओंदी मतलब ओंदी कोई डेडिकेशन नहीं मिलती पई स्टूडेंट दे मतलब जिवें तो सादे पिया ओंदी कोई इंटरेस्ट कोई नहीं या क्या मसला है? नहीं, थोड़ी सी बच्चे को ना ये सोचना चाहिए, टीचर्स का भी होता है, हमें भी मोटिवेट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, तो जो हम करते भी रहते हैं, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि हम लोगों को अब सिर्फ मतलब एकेडेमिया काम नहीं आता, स्किल आपके हाथ में होगा तो आप जॉब कर सकते हैं। अब आपने आई थिंक सर से क्वेश्चन पूछा था कि स्किल है, स्किल नहीं है, मतलब बच्चे जो हैं इतने बच्चे निकलते हैं हर साल और जॉब्स नहीं होती। उसकी रीज़न भी यही है कि मैं ये बात पहले भी कर रही थी कि जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या मांग रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी क्या मांग रही है, हम अपने बच्चों को उसी ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे जो कंटेंट में हमने वो कवर करवाना है। तो हमें जब इंडस्ट्रियल लिंकेज की कमी की वजह से हम लोग ये गैप आ रहा है कि जो मार्केट को चाहिए हम वो बच्चों को उस पर तैयार नहीं कर रहे, हम बच्चों को वो एक्सपर्टीज़ दे ही नहीं रहे। इसलिए हम बच्चों को खुद से कहते हैं कि आप ढूंढें, सर्च करें, मशीन लर्निंग मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, आप वही उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ निकालें। अच्छा, इनके नाल कोई इदारे नहीं जोड़ सकते ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਭ को ਇਹ चीज़ ज़रूरत है तो ऐसा बजाय इनको कि स्टूडेंट को आखो कि भाई तू समझ के सर्च करो, वो भी चीज़ें पहले को मौजूद ये होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस होते हैं, हमारे भी हैं। अभी थोड़ी जब स्टार्टिंग लेवल पे होती हैं यूनिवर्सिटीज़ और ये चीज़ें अभी अब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ जी ये होनी चाहिए, तो अब वो बनते हैं इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, वो बताते हैं वो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस क्या होते हैं। जैसे जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके, या जो बड़ी बड़ी जिनके क्या होती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोडक्ट वगैरह, वो लोग आके इंडस्ट्री से वो बताते हैं कि हमारा ये इशू है, हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके दें। अच्छा, तो हम अपनी डिमांड बता देते हैं आपको? नहीं सर, उसमें ये होता है कि आपका एक बोर्ड बनता है, वो बोर्ड फिर आपको बताता है, मतलब उसमें हर कहीं का GM बैठा है,
कहीं का आईटी स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, तो वो बताता है कि हमारी अब इस कंपनी में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या हम लोग इस टूल पे काम कर रहे हैं, तो हम बच्चों को वो टूल सिखा दें ताकि कल को जब उनकी जॉब्स निकलें तो हमारा बच्चा वहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो। ये असल मेन मतलब ये दोनों तरह से मिलके काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी काम कर रही है और इदारे भी। अच्छा उस्मान साहब, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਥੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮੀ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਆਖਾ ਵੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਠੱਗ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੋਸੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰਬਾ ਸਕੈਂਡਲ ਥੀ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਬਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕੈਂਡਲ ਥੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਐਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ऐप तो पिछले दौर की गाल है, ठीक है। तो वो क्या थी, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान स्कैंडल थी, वो पैसे गिन के भाग गए जिवें फवाद साहब ने आके डबल शाह। तो ਹੁਣ क्या थींदा पे ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍रेनिंग कंडक्ट करवाई बालों को आका। एट दैट टाइम आई वाज वेरी पैशनेट क्योंकि नए ये सोशल काम का जोश चढ़ाई मैं कि यार सारा उन्होंने इकट्ठा किया क्योंकि असा थोड़ा जिहा ना कुरान मजीद, अरबी ग्रामर, साडी एक छोटी जी टीम है, एक छोटी जी सोसाइटी अस चलेंदे हैं अपने इलाके तो उत्थां मैं कि यार उन्हें कोई ना कोई स्किल देनी तो कोई लैपटॉप ही ना गिन के आवे, बाल लैपटॉप ना गिन के आवे, इंटरस्ट ना गिने। एंड एज ना मेरे को इकबाल ने आखा, मतलब कुछ दिन क्लासा के बाद उन्हें कहा सर कोई इन तरह का काम क्या नहीं, बस मैं इवें 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 करेंदा रहां तो पैसे बनते रहे। मैं कि अगर इवें इवें होवे तो मैं अपने सारे घर के लोगों को ला देवां। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MLM ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿੰਦਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਸ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਏ ਐਪਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨया ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨਈ ਐਪ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕरेंदे ਨੇ? ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ करेंदे ਨੇ, लालच देंदे कि तुसां अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो तो 10,000 रुपए तक उन्होंने 40% देसां, वाल अपने डाउन लाइन तुसां एक बंदा गिन के आओ इतना कमीशन मिलसी, 2 बंदे गिन के आओ इतना कमीशन मिलसी, तो डाउन लाइन पूरी तुसां चेन बनेंदे रहो। एक टाइम ऐसा आंदे वो पैसा देंदे रहंदे, बाल खुश थी वेंदे और अपने सारे रिश्तेदारों को ही लवा देंदे। अल्टीमेटली क्या थी वेंदे, जेड़े वेले काफ़ी सारा फंड कट्ठा थी वेंदे, उतों ऐप भी गायब, वैबसाइट भी बंद, सारा कुछ बंद, रिश्तेदारियां भी खराब। मतलब वो आईटी का इस्तेमाल करें लेकिन आईटी का है कोई ना शो, वो गैम्बलिंग है सर। अच्छा गैम्बलिंग, दैट इज गैम्बलिंग। फॉर एग्जांपल हुण बालां दा ये माइंड है कि भाई ऐप होवे, ये मैं इतने गैलन ऑयल खरीद के दे, इतने गैलन मैं पेट्रोल खरीद के दे, ये मैं सिल्वर खरीद के दे, ये मैं गोल्ड खरीद के दे। मैं ये नहीं आता स्कॉलर डिसीजन, मैं वर्डिक्ट नहीं दे सकता। हुण मिसाल के तौर पर मेरे को 10 गैलन ऑयल है, मैं अपनी बाइक गाड़ी ऑयल पवाना, वेयर इज ऑयल, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट? यही कहना वो नंबर्स हैं और अननोन बंदे ने ऐप्स बनाई होन नए, रोजाना आए रोज नए ऐप्स आते हैं। शुरू पैसे देंदे फंड बहुत सारा कट्ठा थी बंदे, दे आर आउट। अच्छा बालों को सही तू हटा दूँ, मतलब ये बजाय इंदे के MM वाले पासे असा स्किल वाले पासे हूँ। मैडम तुहाडे कोल मेरा इंदे हवाले सवाल है, स्किल वाले पासे AI जिवें हुण आ गया सारा जदीद AI जिहड़ा सिस्टम है पिया, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ AI ਦਾ तो सारा ਜਿਹੜਾ सिस्टम है? AI एक सब्जेक्ट है पूरा, एक पूरी फील्ड है। जैसे IT एक पूरी फील्ड है, इसी तरह AI भी उसके साथ की एक फील्ड है। उसमें डिफरेंट आगे फिर कोर्सेज हैं पूरे, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम 1-2 वीडियोस देखें और सीख लें। अगर सीखना भी है तो आप लोग उसके कंटेंट पढ़ें, आप वो देखें। तो बुक्स भी यूनिवर्सिटी में तो सब्जेक्ट होता है पूरा। अच्छा, सब्जेक्ट जी, एक पूरा सब्जेक्ट है AI का, यानी कि जस्ट अलग कोर्स नहीं है, ये एक पूरा सब्जेक्ट के तौर पे जी। ये एक सब्जेक्ट, जैसे IT के अगर मैं पढ़ा रही हूँ BS में, BS IT में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन BS AI में भी कराई जाती है। सही। तो उसमें अब जितनी आप डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें, यानी अब जब हम कोर्स पढ़ा रहे हैं तो हम बेसिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन जब हम पूरा का पूरा एक बैचलर्स करवा रहे हैं एक स्टूडेंट को, तो हम उसकी हर एल्गोरिदम का उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाएंगे ताकि वो कल को प्रैक्टिकली प्रोफेशनली उसको अपने करियर में उसको यूज़ कर सके। अच्छा फवाद साहब तुहाडे कोल सवाल है मेरा इस हवाले तो कि जिवें तुसीं पहले आखे भी डिग्री दे नाल जिहड़ा ना तरबियत होनी चाहिए, तो अगर फर्ज करो जिवें हुण AI दे विच BS AI है पिया या BS करे सी बाल तो वो AI कर सकते, क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग है तो आने वाले वक्त का दिन मुस्तकबिल ही होए पिया।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਗਿਨੇ ਬਾਲ ਕਰ ਗਿਨੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਗਰੀ यानी बाल सिर्फ कोर्स कर गिने डिग्री ना गिने तो कितना हद तक तो लगता है कि वो कामयाब थी वैसी? इसमें सर ऐसा है कि शेर साहब जैसे हम लोग देख रहे हैं डिग्री जो है ना पहले काफ़ी सारी डिग्रीज ऐसी थी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी जिनमें AI BS AI वन ऑफ देम है, या इसके अलावा अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी है, या इसके अलावा मशीन लर्निंग है, या इसके अलावा जो रिबोटिक्स है. अब रिबोटिक्स में भी BS हो रहा है. अब ये वो डिग्रीज हैं जो कि पहले लॉन्च नहीं की गई थी लेकिन लोग इसमें काम कर रहे थे, ठीक है. और या अगर कोई वो बच्चे जो BS कर चुके हैं और अब वो AI में जाना चाहते हैं तो क्या वो नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं. जस्ट उन्होंने एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में क्या करना है, अपने आप को लेके जाना है. अच्छा, ये जो AI जितना भी काम कर रहा है ना, मतलब कि इसके बारे में ये है कि AI जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इंटरनेट का 1/3 पार्ट अपने पास सेव किया हुआ है. अच्छा, अब हम आम रूटीन में इसको देख रहे होते हैं कि हम कोई भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी, वो बाद में जैसे हम इंटरनेट ओपन करते हैं वो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं. तो ये सारा AI बेस है. और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन अर्निंग्स के या सोशल, वो सारे AI बेस कर रहे हैं. मतलब कि अब आप देखें गूगल को देखें, वो सारा AI है और ये सारे कीवर्ड्स की बेस पे होते हैं. हम डेली रूटीन में जो बात कर रहे हैं, जो टॉक कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट हमारे सामने आना स्टार्ट हो रहा होता है. जो हमारी डिवाइस है ना, वो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती है, गैदर कर रही होती है और उससे फिर वो इंटरनेट में वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं. तो ये AI का कंटेंट है. और इसमें अगर कोई भी बंदा अगर उसने IT की फील्ड से है तो किसी भी टाइम पर किसी भी फील्ड में इन हो सकता है. मतलब कि IT का जो बंदे हैं या CS के जो लोग हैं, वो उनको सारे स्किल्स ही इनका आइडिया होता है. अब वो उनमें से जो एक स्किल मैच्योर करते हैं उसमें वो एक्सपर्ट कहलाते हैं जी, इस स्किल के जी एक्सपर्ट हैं. ਅੱਛਾ ਸਰ, AI ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਆਉਂਦਾ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਹੀ AI ਕੋਈ ਕਰਿੰਦੇ ਬਿਠੇ ਤੇ AI ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ AI ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ. क्या बस आपको मुकाबले कोई बेसिक कोई कोर्सेज चलाने पोसन या AI सारे वास्ते काफ़ी है? सर इसका ना ऐसे है, मैं आपको बताऊं, जब एरोप्लेन आए थे ना, जहाज़, हवाई जहाज़, लोग कहते थे नहीं जी, ठीक है जी, बल्ब लाइट, उस वक्त लोग इसको नहीं मानते थे. अब आप देखें, आप जाने को सफ़र लाहौर आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है जी अगर हम बाय एयर या बाय बस सफ़र करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे. तो AI भी ऐसे ही है. अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करते उस्मान साहब तो फिर हम पैदल भी चलते रहें, कोई मसला नहीं है. तो लेकिन अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते तो हमारे काम आसान हो सकते हैं. तो इसमें भी दो तरह के लोग हैं. एक वो हैं जो AI जनरेटर हैं, मतलब कि जो इसको डेवलप कर रहे हैं, और दूसरे हैं कंज्यूमर. हाँ, अगर हम कंज्यूमर बनते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर हम उसके डेवलपमेंट के पार्ट में शामिल हैं या हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर हमें इसका फ़ायदा है, बिल्कुल है. अच्छा मैडम, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ IT ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ AI ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ, ਕਿਤਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ 60% ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ मतलब रोजगार के मौके मौजूद हैं कि सारा हर नौजवान क्या है जो तो रोजगार कमा सकते? ये डिपेंड करता है स्किल के ऊपर. मैंने आपको पहले भी बताया, जॉब्स हैं, स्किल नहीं है. सही. तो कहीं घूम फिर के बाद फिर हम लोगों पे ही आ जाती है, इंसानों पे ही आ जाती है. लेकिन अगर इसको फिगर की उसमें जाएं, नंबर्स की शेप में जाएं, तो मेरे ख्याल से तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है या जो आजकल ज़माना चल रहा है उसमें IT CS वाला ही कामयाब नज़र आता है आपको. चाहे आप मेडिकल को देख लें, डॉक्टर्स हैं, चाहे आप, मैं क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ तो मैं उसी को ज़्यादा प्रेजेंट करूँगी कि वहाँ पे भी आप बेशक काम खेतों में कर रहे हैं, हालांकि पहले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं, बट कहीं ना कहीं उनको IT की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. सही, यानी हर शोबे में ज़रूरत है. तो जब देखिए ना, जब एक बंदा है अगर उसने सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है और साथ उसको IT भी आता है, ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों को मिला के तो हम हर फील्ड में उसकी जॉब्स ही देखते हैं ना. तो IT CS वाला तो कहीं नहीं जाएगा. अच्छा उस्मान साहब, यो सवाल मेरा यही हवाले तो रोजगार के हवाले से आंदा पे, मतलब सारी हुकूमत ने जड़ा ना एक जहन बनाया कि सारे नौजवानों तो IT दे स्पैशली खास तौर पर कि सा 20-25 अरब डॉलर जड़ा ना सारा एक एस्टिमेशन है कि भाई 3 साल दे ऐसा इन्हों को अर्निंग करनी है.
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਤਨੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को इन चीज़ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣੀ ਹਨ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਟ ਕੰਫਰਟ ਆਫ देयर ਹੋਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ को ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ कि एक मिसाल है एक शायद क्योंकि नुकसानात ही हैं तो मैं उनके फ़ायदे तो ही महरूम थी कि बैवना तो अपनी नस्ल को उनके को महरूम करे मिसाल दो चाकू है चाकू का फ़ायदा भी है नुकसान भी है इट डिपेंड्स कि तुसां चाकू की दिते वो परसन नालों चेंज थी वेंदे तुसां क्रिमिनल जो एलीमेंट्स इंदे कोई शक है नहीं तो AI के जो नैगेटिव इफेक्ट है ना वो इतने वर्ल्ड लैवल पर हैं यानी एक बंदा है तुसां वो उनके ये लफ्ज़ कह नहीं ना वो बुलेंदा पे वो उनकी शक्ल जो वीडियो करेंदी पई है या कोई ऐसा उनके एक्ट करके दिखेंदा पे वो मगर वो एक्चुअली वो बंदा क्या नहीं उस AI है अब ये बहुत ज़्यादा एक मसला है उनका सदेबाब करना पोसी लेकिन उनकी वजह करके असा AI को छोड़ दूँ सही ठीक है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिमें मैम ने आके AI बेशक AI तो इंसाना ने बनाई ने जितना मर्जी वो इंटैलीजेंट थी वनू और डिपेंड तक रहिंदा पे इंसाना दे डाटा ते ठीक है वो असा उनको चैनलाइज करके यूज़ करके उनको असा अपनी फील्ड के हिसाब नाल इस्तेमाल कर सकते हैं AI है साढ़े ताबे अल्लाह ताला ने हर शय मुसखर कर दी है अल्लाह ताला ने हर शय इंसान वास्ते बनाई इंसान को अपने लिए बनाए तो ये मुसखर ये साढ़े कंट्रोल ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ IT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੇਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕੂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਚਾਕੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है या कोई चेक नहीं कर सकते कि बाल पता लग बने एडमिशन के टाइम पे तो बस एडमिशन होता है लेकिन पूरा एक जब कोर्स चल रहा है एक प्रोग्राम है डिग्री प्रोग्राम है तो उसमें कोर्सेज होते हैं एथिक्स के एथिक्स के अपने एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के नाम से कोर्सेज होते हैं पूरे जहाँ बच्चों को ये बात समझाई जाती है अब लेकिन आप किसी को कितना भी समझा लें फिर जब नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे तो वो तो आने ही हैं पेरेंट्स की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है पेरेंट्स की बहुत रिस्पांसिबिलिटी है उन्हें को अंडरस्टैंड करना पौसी बाला नाल कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स ते जी जी ਇਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਆਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ को गाइड करें दो कि भाई ई फील्ड ਦਾ ਇਹ स्कोप है या इतना कामयाबी थी नहीं जो बच्चे आते हैं तो उनको खुद ही पता है आजकल आपको पता है हर किसी को खुद ही पता है कि जब एडमिशन्स ओपन होते हैं अब प्री मेडिकल वाले बच्चे भी ITCS करने आते हैं सही बल्कि फवाद साहब मेरा सारे को सवाल है हाँ जी अच्छा भाई ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ IT ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਪੈਨ ਬਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਅਗੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਗੋ यानी कि वो BS कर सकते हैं ਤੇ अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं इसमें पहले तो मतलब कि सब बच्चे ही कर सकते थे अब थोड़ा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अब गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं अब FA वाला बच्चा या ICOM का बच्चा अब वो BScs या IT नहीं कर सकता प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और ICS वाला बच्चा जिसकी ICS में भी मैथ हो वो वाले बच्चे आगे BScs BSIT इन फील्ड में जा सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडिशनल मैथ का ऑप्शन देती हैं बच्चों को कि वो एडिशनल मैथ का लेक्चर लेकर और फिर वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं अदरवाइज़ फिर मुश्किल है तो बच्चों को शुरू से ही बताना पड़ेगा और अब तो ये है कि ना जब बच्चे का मेडिकल या इंजीनियरिंग में मेरिट नहीं बनता तो पेरेंट्स की पहली चॉइस या बच्चे की यही होती है कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज में जाना है और वो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से पूरी यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें ना मतलब कि वो साउथ पंजाब की हों या अपर पंजाब की हों तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट मेडिकल या इंजीनियरिंग के बाद आपको नज़र आएगा वो कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड्स का आएगा मतलब बच्चों को शुरू से जैसे आपने तो माशाल्लाह बता दिया शुरू से बताना पड़ेगा अच्छा मैम जिमें बाल शुरू को दसना पाते ਤੁਹਾਡੀ क्या तजावीज़ हैं सारे नौजवानों वास्ते ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਲ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ई फील्ड ਵਿੱਚ सही कामयाब थी सकते ये तो जब बच्चे छोटे होते हैं वो आपकी बात ठीक है मैं खुद प्री मेडिकल पढ़ के आई हूँ सही
FSC में, आगे BS IT में और MS भी CS में। तो ये पेरेंट्स के ऊपर होता है, और आजकल हमारा अब थोड़ा सा ना वो डॉक्टर इंजीनियर वाला हटता जा रहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं हर किसी के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन कि थोड़ा सा वो कहते हैं कि इसमें क्योंकि अभी थोड़ा इतना आपका स्कोप कम होता जा रहा है, आजकल जो स्कोप चल रहा है वो इसी तरफ चल रहा है। दूसरा ये बच्चों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं एज अ मदर नहीं रेस्ट्रिक्ट करूँगी अपने बच्चे को कि उसने नहीं, अगर मैंने CS किया तो वो CS करे, नहीं। जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, बेशक अर्निंग कम हो पढ़े लिखे लेकिन आप कम से कम वो अपनी माशाल्लाह पढ़े लिखे वाली गाल है कि समझ आ गई कि बालों को भी किवें चलावना अपने मुताबिक नहीं। अच्छा उस्मान साहब तुहाडा कोई मुख्तसर जियां तुसा क्या तजावीज़ देसो फ्रीलांसिंग दे हवाले तो बालों नौजवानों को? सर डू बेसिकली मोरलिटी तुसां डिस्कस करेंदे पे ना, एथिकल वैल्यूज़ ते मोरलिटी, इंदे विच ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक ते हूँ बालां को ये समझावन दी ज़रूरत है कि तुसां सब तो पहले इस्लाम दे रिप्रेजेंटेटिव हो ते पाकिस्तान दे रिप्रेजेंटेटिव हो, यू आर एन एम्बेसडर, ठीक है। तो सब तो पहले उनको ये शायद समझावन की जरूरत है, वो जड़े वेले फ्रीलांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम की वजह यही है ना, वो बालों को प्रॉपर एथिक्स मोरलिटी और दीन की तालीम नहीं होती, ठीक है। उनकी वजह करके वो उत्था पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते। जिमें तक पता है 2022 पिछले साल एक मियाँ चन्नू के साहिवाल की कितनी बदनामी थी, अमेजोन का एक स्कैम, फवाद साहब तक याद उसी अमेजोन का स्कैम थी आई। अमेजोन को क्या किया उन्होंने मिसयूज़ किए, इलीगल ड्रॉप शिपिंग की है, लोगों को इन्वेस्टमेंट की है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कट्ठे किए, उतना 13,000 अकाउंट बंद थी गए। और पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट बेसिकली शायद इन्होंने 2 शहरों को पाते या पता नहीं पूरे पाकिस्तान को बर ये पाता ही उन्होंने 2012 मसला थी आई। और सब तो वजह क्या गाल है कि उनके कोल स्किल भी है माशाल्लाह, क्या है रिलीजियस एजुकेशन कहनी, उनकी बेस सही कहनी। इो एडवाइस वालदैन के वास्ते, वालदैन को पता होना चाहिए कुरान मजीद 5 मकामात तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिरक की मजम्मत के नाल ना वालदैन के हकूक का आके सूरत लुकमान, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत के दिन उन्हें उनके वालदैन के बारे अनिशकुर ली वाली वालिदै का इलैयल मसीर, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मेरा भी शुक्र अदा करो तो अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करो। तो वो जेड़े वेले तुसां कुरान मजीद समझ के बालों को पढ़वे सो, उनकी तालीम दे सो, वो सोसाइटी वास्ते भी अच्छा है, इस्लाम वास्ते भी अच्छा है, पाकिस्तान के वास्ते अच्छा है, अपने पेरेंट्स के वास्ते। अदरवाइज ये होती सी जिमें एक बंदा आदा भी कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। कितना यार ये स्टेटमेंट कितनी तकलीफ देंदी है एक वालिद को कि तू मेरे वास्ते किता ही क्या है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी गल की। तालीम के नाल तरबियत की भी बड़ी जरूरत है, तो बालों को सिखाना पोसी दसना पोसी कि साडा क्या साडा जिहड़ा ना वो मतलब साडा इस्लाम क्या है, तरबियत के नाल साकू जिहड़ा ना बल ही असां कामयाब थी सकसूं। तो माशाल्लाह बड़ा शुक्रिया अदा करें सतरहा मेहमान का, काफ़ी तरीके नाल डिटेल दसे बालों को, तो नौजवान घर बैठे बैठे ही ये सारी चीज़ां सीख सकते हैं। तो नाज़रीन बड़ा शुक्रिया मैं तरह मेहमान का बल दोबारा अदा करे सां। तो इनके नाल ही नाज़रीन क्योंकि सारे को वक्त मुख्तसर है, तो इंशाअल्लाह असां ई प्रोग्राम के नाल असां हमेशा जिहड़ा ना तुसां सीखण दा मौका मिलता रहा, अपना फीडबैक लाजमी दिवाए। तो अज दे वास्ते ई प्रोग्राम के हवाले तो अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलसूं, अल्लाह हाफिज़।